Hello, CSI and aspirants. I hope all of you are doing perfectly well, and I would like to congratulate all those students जिनका JRF क्रैक हुआ है, जिनका LS क्रैक हुआ है. आप लोग देख ही सकते हो. फिलहाल हम लोग का टेक्स्ट बुक का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही अच्छा है. बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया एंड दे हैव इन्फॉर्म्ड अस कि सर JRF क्रैक हो गया. कुछ बच्चों का LS क्रैक हुआ है जो फिर से JRF के लिए बैठेंगे नेक्स्ट ईयर. खास करके मैं उन सारे बच्चों को मोटिवेट करना चाहूँगा जिनका क्रैक नहीं हुआ है. डोंट जस्ट लूज होप, डोंट थिंक दैट एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा. फिलहाल दिसंबर का साइकिल बहुत ही सामने आ चुका है, बहुत ही पास आ चुका है. आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, डेफिनेटली होगा. और हमारे साथ बने रहिए. यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हम लोगों ने पढ़ाए हैं, बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, बहुत सारे थियोरीज अवेलेबल हैं. प्लीज़ गो थ्रू कीजिए उन सब चीज़ों से. आप लोगों का एग्ज़ाम बिल्कुल हो जाएगा. सिर्फ एक बात को ध्यान रखना है कि हमें परसिवरेंस नाम की एक चीज़ होती है, उस चीज़ को कभी खोना नहीं है. दैट मीन्स ऑलवेज इफ यू फेल यू शुड ट्राई हार्डर, you should try harder. So at the end of the day, definitely you will succeed. तो बेसिकली आज का जो सेशन है उस सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पार्ट सीखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्यूपेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. तो अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो आप लोग को पता चलेगा. जैसे कि मान लो कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n आइडेंटिकल पार्टिकल्स. कंसीडर अ सिस्टम of n identical particles particles each of which can occupy each of which can can occupy occupy any of the two energy levels of the two energy levels E1 with degeneracy G1 and E2 with degeneracy G2 with degeneracy G2. तो बेसिकली जो भी E1 एनर्जी लेवल में होंगे पार्टिकल्स E1 लेवल के करस्पॉन्डिंग टोटल G1 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं एंड E2 लेवल के करस्पॉन्डिंग टोटल G2 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं. अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम लोग देयरफॉर पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम कैसे लिखेंगे. पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल हम लोग लिख सकते हैं Z1 is actually equals to G1 e to the power of negative of beta E1 plus G2 e to the power of negative of beta E2. Probability that a particle probability that the state is E1 is occupied by a particle, probability that state E1 is occupied by a particle क्या होता है P1 आता है. that is actually equals to e to the power of G1 e to the power of negative of beta E1 divided by the partition function Z1. Probability that state E2 is occupied by a particle तुम्हारा आएगा P2. Just for 1 second I will just turn off my video so that all of you can see. is given by G2 e to the power of negative of beta E2 divided by Z2. अब अगर हमसे पूछा जाए कि what is the number of particles that are in state E1 तो हम लोग क्या लिखेंगे.
number of particles in state E1, अगर ऐसा बोला जाए, the population of level E1 or number of particles in state E1 that is actually given by total number of particles multiplied by P1, that is actually equals to n G1 e to the power of negative of beta E1 divided by G1 e to the power of negative of beta E1 plus G2 e to the power of negative of beta E2. और अगर ये पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन स्टेट, ये अगर पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन स्टेट E2, तो हम लोग को बताना चाहिए दैट इज एक्चुअली कुछ, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और लिख सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन स्टेट E1 को हम लोग लिख रहे हैं N1, that is actually equals to capital N into P1. Number of particles in state E2 को हम लोग लिख रहे हैं N2, that is actually equals to capital N into P2. That will be N G2 e to the power of negative of beta E1 divided by beta E2 divided by G1 e to the power of negative of beta E1 plus G2 e to the power of negative of beta E2. It can be very well proven that P1 plus P2 should be equals to 1 and N1 plus N2 should be equals to capital N. ये अगर हो गया है तो ज़रा मुझे बताओ fraction of particles in level 1, fraction of particles in level 1, in level E1 क्या है वो? N1 divided by N, N1 divided by N, the number of particles in E1 divided by total number of particles, जो क्या आना चाहिए? P1. तो fraction of particles in level E1 is P1 आता है, probability, and similarly fraction of particles in level E2 तुम्हारा आ जाएगा N2 divided by capital N, that is actually equals to your P2. और अगर हमसे ये पूछा जाता है कि relative population of level 2 with respect to level 1, relative population of level E2 with respect to level E1, तो वो होना चाहिए तुम्हारा N2 by N1, जो आ जाएगा, if I do N2 divided by N1, I'm going to get P2 by P1. I'm going to get P2 divided by P1, और P2 by P1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? If I do P2 by P1, ये तो तुम्हारा Z1 ही रहेगा. Z1 is the partition function for a single particle. Okay, तो P2 by P1 तुम्हारा आ जाएगा G2 by G1 into exponential of e to the power of beta into E1 minus E2 या negative of beta into E2 minus E1. That can be written as G2 by G1 to e to the power of negative of beta into E2 minus E1. That's all I can write. Negative of beta into E2 minus E1. So I think this part is entirely visible to all the students. ठीक है, अगर ये पार्ट विजिबल है तो डेफिनेटली आप लोग आगे बढ़ सकते हो. If this part is visible to all the people, then I think we can just now proceed to solve some questions. देखो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कितने पार्टिकल्स लेवल E1 में है, कितने पार्टिकल्स लेवल E2 में है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे कि कितने पार्टिकल्स लेवल E1 में है, कितने पार्टिकल्स लेवल E2 में है. ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग थोड़ा देखेंगे. एक सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम्हारा था वो जस्ट 2022 में आया था.
बोला गया है सिस्टम विथ टू एनर्जी लेवल्स इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ हीट रिजर्वर एट टेम्परेचर 600 केल्विन। द एनर्जी गैप बिटवीन द टू लेवल्स इज 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मान लेते हैं कि एक एनर्जी लेवल है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, दूसरा एनर्जी लेवल है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। Let P be the probability that the system is in higher energy level. Okay. Now, which of the following statements is correct? तो P का वैल्यू क्या होगा उसके ऊपर पूछा गया है। तो देखो सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, समेशन ओवर आई जी आई टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ बीटा ई आई। दोनों के दोनों स्टेट नॉन डिजनरेट है, तो e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा इंटू जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में लेके आओ, तो e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा इंटू जीरो इंटू 1.6 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 जूल प्लस e2 e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ बीटा इंटू 0.1 इंटू 1.6 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19। तो इसको जूल में लेके आया एनर्जी को, बाकी e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा e1 प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा e2 सेम चीजें हैं। दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1 प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा इंटू 1.6, ये तो तुम्हारा 1 आ गया, ये तुम्हारा है e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा इंटू 1.6 टू द पावर ऑफ 20। दिस इज द पार्टीशन फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज इन स्टेट E1 क्या होगा, e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा E1 डिवाइडेड बाय द पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन मतलब e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा इंटू E0 प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा इंटू E1 जो आना चाहिए। तो यू कैन चेक कि पार्टीशन फंक्शन तो हमारा ये आया है 1 प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 20। और आफ्टर दैट तुम्हारे ऊपर में भी यही है e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 20। अब बीटा हमें पता है 1 बाई केबीटी होता है, टी का वैल्यू 600 बोल दिया गया है, के का वैल्यू हमें पता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 23, तो मल्टीप्लाई करके इन्वर्स करके बीटा का वैल्यू ये आ जाता है। ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 0.126। तो प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम is the energy state E1 is occupied by a particle, the probability that the system is in the higher energy state can be very well given by this value that is 0.126। तो P का जो वैल्यू आया है हमारा that is 0.126। यहाँ पे देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 0.126 इस रेंज में लाई करता है, 0.1 से बड़ा है बट 0.2 से छोटा है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जेस 2022 का क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो ये नेट दिसंबर 11 में आया था, जहाँ पे पूछा गया है कि एक वन डायमेंशनल चेन है consists of a set of n rods each of length a. Now when stretched by a load, each rod can either align either parallel or perpendicular to the length of the chain. Energy of the rod is minus epsilon when aligned parallel to the length of the chain, and it is plus epsilon when aligned perpendicular to the length of the chain. When the chain is in thermal equilibrium at temperature T, average length क्या होगा। तो बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। अगर देखो बहुत सारे रॉड से एक चेन बना हुआ है, अगर रॉड चेन अगर मान लो ये तुम्हारा चेन है, तो अगर रॉड का लेंथ चेन के लेंथ के अलोंग है, पैरेलल है, तो उसका एनर्जी होगा तुम्हारा माइनस एप्सिलॉन। और अगर किसी रॉड का लेंथ चेन के लेंथ के परपेंडिकुलर है तो उसकी एनर्जी होगा प्लस एप्सिलॉन। तो जरा मुझे बताओ पार्टीशन फंक्शन एक रॉड का पार्टीशन फंक्शन फिर क्या होगा, किसी भी एक रॉड आइदर दो ही डायरेक्शन में अलाइन हो सकता है, आइदर पैरेलल टू द चेन नहीं तो परपेंडिकुलर टू द चेन। तो पैरेलल टू द चेन होगा तो एनर्जी होगा माइनस एप्सिलॉन, परपेंडिकुलर टू द चेन होगा तो एनर्जी होगा प्लस एप्सिलॉन। तो पार्टीशन फंक्शन इज टू द पावर ऑफ माइनस बीटा इनटू प्लस एप्सिलॉन प्लस टू द पावर ऑफ माइनस बीटा इनटू माइनस एप्सिलॉन, दैट इज प्लस बीटा एप्सिलॉन। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट अ रॉड इज पैरेलल टू द चेन लेंथ, एक चेन लेंथ के साथ रॉड पैरेलल है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अगर चेन लेंथ के साथ पैरेलल होगा तो सर जी उसका एनर्जी होना चाहिए माइनस एप्सिलॉन। तो आई एम गोना गेट e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा इनटू माइनस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय द पार्टीशन फंक्शन, जो कि प्लस बीटा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय पार्टीशन फंक्शन होगा। प्रोबेबिलिटी दैट द रॉड इज परपेंडिकुलर टू द चेन लेंथ क्या होगा, e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा इनटू अगर परपेंडिकुलर होगा तो एनर्जी होगा एप्सिलॉन, तो e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा इनटू प्लस एप्सिलॉन divided by the partition function. So this is the probability. तो number of rods कितने हैं जो parallel to the chain length है, number of rods कितने हैं जो chain length के साथ parallel है, तो n ये should be equal to total number of rods जो कि capital N है multiplied by the probability कि एक rod parallel to the chain length होगा, तो e to the power of beta epsilon by z, तो this is your n1. What is the number of rods that is perpendicular to the chain length, तो n into e to the power of minus beta epsilon divided by z, ये probability के साथ टोटल नंबर n मल्टीप्लाई कर दिया, that is your n2। तो ये n1 नंबर ऑफ रॉड जो ये है ये चेन लेंथ के साथ पैरेलल है, ये n2 नंबर ऑफ रॉड जो ये है ये चेन लेंथ के साथ परपेंडिकुलर है। अब हमें बोला गया है पूरा चेन का लेंथ क्या होगा। भाई मुझे एक बात बता, अगर मान ले पूरे चेन में पूरा चेन 5 रॉड से बना हुआ है, उसमें से तेरा 2 रॉड, ये एक रॉड,
अच्छा, दूसरा रॉड ऐसा है, तीसरा रॉड ऐसा है, चौथा, अच्छा मान लो ऐसा सिनेरियो है, तो 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, मान लो चेन टोटल 6 रॉड से बना हुआ है। 6 रॉड में से 2 रॉड परपेंडिकुलर टू द चेन लेंथ है, 4 रॉड पैरेलल टू द चेन लेंथ है। तो चेन का लेंथ क्या होगा, जो रॉड पैरेलली रखा गया है उनका नंबर मल्टीप्लाइड बाई उन रॉड का लेंथ, तो एल, तो 4 आना चाहिए। जो रॉड्स परपेंडिकुलर रखा गया है वो रॉड चेन के लेंथ में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर पूरा चेन का लेंथ मुझे कैलकुलेट करना है, मान ले 6 रॉड से चेन बना हुआ है, तो अगर मुझे चेन का लेंथ चाहिए तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं देखूंगा कितने रॉड्स पैरेलली रखा गया है। तो जितने रॉड पैरेलली रखा गया है उस नंबर को काउंट करूंगा, जहां पे एक रॉड है, 2 रॉड, 3 रॉड, 4 रॉड, 4 रॉड पैरेलली रखा गया है सर। जो रॉड परपेंडिकुलरली रखा गया है वो रॉड चेन के लेंथ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उनका तो लेंथ ही नहीं आ रहा है चेन के लेंथ क्या लो, क्योंकि उनका लेंथ चेन के लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो जो रॉड पैरेलली रखा गया है उनका लेंथ ही चेन के लेंथ पे कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम लोग पैरेलल जितने रॉड रखे गए हैं उनका नंबर लेंगे मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ वन रॉड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल चेन का लेंथ मिल जाएगा। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे मिल चुका है कि पैरेलल रॉड कितने हैं, द नंबर ऑफ पैरेलल रॉड्स टू द चेन लेंथ इज n1। तो हम लोग n1 के साथ एक रॉड का जो लेंथ है दैट इज l, तो एक रॉड का लेंथ जो है दैट इज a, तो n1 के साथ हम a मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा चेन का लेंथ मिल गया l, तो l इज इक्वल्स टू n1 into a, that is n1 is this e to the power of beta epsilon divided by z, z is e to the power of beta epsilon per e to the power of minus beta epsilon multiplied by n into a, so this thing, so यहाँ पे इससे इसको डिवाइड कर दो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में e to the power of minus beta epsilon मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। so that is the length of the chain, na divided by 1 plus e to the power of minus 2 beta epsilon, na divided by 1 plus e to the power of minus 2 beta epsilon, so option D is correct, okay, option D is correct, option D is correct। इसके बाद ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन नेट फरवरी 2022 में भी पूछा गया था। उस क्वेश्चन में बोला गया है क्या, जरा देखो, उस क्वेश्चन में बोला गया है कि अ पॉलीमर मेड अप ऑफ n मोनोमर्स इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेंपरेचर T, ईच मोनोमर कुड बी ऑफ लेंथ a और 2a, द फर्स्ट कंट्रीब्यूट्स एनर्जी 0, अगर मोनोमर का लेंथ a है तो उसका एनर्जी 0 होगा, अगर लेंथ 2a है तो उसका एनर्जी होगा एप्सिलॉन। तो एवरेज लेंथ ऑफ द पॉलीमर क्या होगा इन यूनिट्स ऑफ ए ने पूछा गया। तो एनर्जी ऑफ द मोनोमर ऑफ लेंथ ए क्या होगा 0, एनर्जी ऑफ द मोनोमर ऑफ लेंथ 2a क्या होगा एप्सिलॉन। तो दो ही एनर्जी हो सकता है एक मोनोमर का, अगर उसका लेंथ a है तो 0 होगा, अगर उसका लेंथ 2a है तो एप्सिलॉन होगा। तो सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन क्या होगा फॉर अ सिंगल मोनोमर e to the power of minus beta into 0 plus e to the power of minus beta into epsilon, तो ये तुम्हारा पार्टीशन फंक्शन है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक मोनोमर का लेंथ a होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक मोनोमर का एनर्जी 0 होगा, एनर्जी 0 होगा मतलब लेंथ a होगा, that is actually equals to p1, that is actually equals to e to the power of minus beta into 0 divided by z, क्योंकि अगर लेंथ a है तो उसका डेफिनेटली एनर्जी 0 होगा, तो e to the power of minus beta into 0 divided by z, तो ये 1 by z आ गया। प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक मोनोमर का लेंथ 2a होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक मोनोमर एनर्जी एप्सिलॉन में होगा, दैट इज गिवन बाय p2, that is equals to, अगर एनर्जी उसका एप्सिलॉन है तो उसका लेंथ 2 होगा, तो e to the power of minus beta into epsilon divided by z, द पार्टीशन फंक्शन। तो नंबर ऑफ मोनोमर्स ऑफ लेंथ a क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोनोमर्स मल्टीप्लाइड बाय p1, प्रोबेबिलिटी p1, दैट इज इक्वल्स टू n1, नंबर ऑफ मोनोमर्स ऑफ लेंथ 2a, दैट इज इक्वल्स टू n into p2, दैट इज n2। गुड। तो एवरेज लेंथ ऑफ द पॉलीमर क्या होगा, एवरेज लेंथ ऑफ द पॉलीमर होगा तुम्हारा, कुछ मोनोमर्स तुम्हारे a लेंथ के हैं, कुछ मोनोमर्स तुम्हारे 2a लेंथ के हैं, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना मोनोमर्स a लेंथ के हैं। मान लो n1 मोनोमर्स a लेंथ के हैं तो n1 into a, प्लस हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना मोनोमर्स 2a लेंथ के हैं, तो दैट इज मान लो n2 नंबर ऑफ मोनोमर्स 2a लेंथ के हैं तो n2 into 2a, तो ये हो जाएगा टोटल लेंथ। तो एवरेज लेंथ ऑफ द पॉलीमर इज n1 into a प्लस n2 into 2a, तो n1 into a प्लस n2 into 2a, n1 क्या है कैपिटल N into p1, तो कैपिटल N by z into a, n2 क्या है कैपिटल N into p2, तो कैपिटल N के साथ ये मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल N to the power of minus beta epsilon by z into 2a, तो ये ऐड करके ये चीज आ रहा है। अब उन लोगों ने कह दिया है कि टेम्परेचर का वैल्यू है T, दैट इज एप्सिलॉन बाई kb, टेम्परेचर का वैल्यू अगर एप्सिलॉन बाई kb है तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन, तो यहाँ पे जो बीटा है बीटा की जगह पे 1 बाई एप्सिलॉन पुट कर दो, तो मिल जाएगा Na प्लस 1 बाई 2 into to the power of minus epsilon minus 1 divided by 1 plus to the power of minus 1. Can you all see this? Okay, hang on, I'll just turn off my video for a moment. Yes, देख लो, तो यहाँ से ये आया है। अब उन लोगों ने बोल दिया कि सिस्टम का टेम्परेचर है एप्सिलॉन बाई kb, टेम्परेचर अगर एप्सिलॉन बाई kb है तो kbt क्या होगा एप्सिलॉन, तो 1 बाई kbt क्या होगा 1 बाई एप्सिलॉन, मतलब बीटा क्या होगा 1 बाई एप्सिलॉन,
तो यहाँ पे बीटा की जगह पे 1/ε पुट कर दो, तुम्हें मिल जाएगा Na इंटू 1 प्लस 2 इंटू e टू द पावर ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर ऑफ -1। तो यहाँ से अब ऊपर और नीचे e से मल्टीप्लाई कर दो, तो e प्लस 2 डिवाइडेड बाई e प्लस 1, यहाँ पे साइड में a। तो उन लोगों ने पूछा था कि Na की यूनिट में आंसर बताओ, मतलब आंसर में Na नहीं होगा, जो भी आएगा उसको Na से डिवाइड करके आंसर बताओ। तो e प्लस 2 बाई e प्लस 1 होना चाहिए, तो e प्लस 2 डिवाइडेड बाई e प्लस 1, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप लोगों को पूछा जाएगा कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से आप लोग जरा हमें बताइए कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एनर्जी स्टेट E1 में है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एनर्जी स्टेट E2 में है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल हैज इज एनर्जी स्टेट E1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल इज एनर्जी स्टेट E2। तो ये सारे जो चीजें हैं दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बेस करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को 3 एग्जांपल दिखा दिया, और ये बहुत ही रिसेंट ईयर से लेके बहुत पुराने तक भी आए हैं। जेस्ट 2022 में एक आया था, एक नेट 2022 में आया है, और एक क्वेश्चन तुम्हारा आया है, ये वाला क्वेश्चन आया तुम्हारा नेट दिसंबर 11 में। सो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ पे और एक टाइप के क्वेश्चन ही बन सकते हैं कि सिस्टम का एवरेज एनर्जी क्या होगा। एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम मैं भी यहाँ पे करा देता हूँ। जो पहला वाला तुम लोग मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम कराया है, ये जो थ्योरी यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे और एक चीज आ सकता है, दैट इज एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम या एवरेज एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैसे निकालोगे? जितने पार्टिकल्स एनर्जी स्टेट E1 में हैं वो कितने हैं, कितने पार्टिकल्स एनर्जी स्टेट E1 में हैं? सर N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं E1 में। E1 में सर N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स इन स्टेट E2, ओके हाँ, N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स E1 स्टेट में है, तो N1 इंटू E1 प्लस कितने पार्टिकल्स स्टेट E2 में है? N2 इंटू E2। गुड, आप एक काम करो, N1 के साथ E1 को मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा? N बाहर रहेगा, N बाहर रहेगा, E1 G1 e to the power of minus beta E1 प्लस N2 के साथ E2 मल्टीप्लाई करो, N2 तुम्हारा ये है, तो N E2 G2 N E2 G2 e to the power of minus beta E2। अच्छा, मैं पार्टीशन फंक्शन नीचे लिखना भूल गया, तो यहाँ पे होगा G1 e to the power of minus beta E1 प्लस G2 to the power of minus beta E2। यहाँ पे होना चाहिए G1 e to the power of minus beta E1 प्लस G2 to the power of minus beta E2। एवरेज एनर्जी निकाल रहा हूँ सिस्टम का, तो क्या आ जाएगा? तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? N तो कॉमन ले सकते हो तुम, लेके तुम लिख सकते हो E1 G1 e to the power of minus beta E1, E1 G1 e to the power of minus beta E1 प्लस E2 G2 e to the power of minus beta E2 डिवाइडेड बाई तुम्हारा आ जाएगा G1 e to the power of minus beta E1 प्लस G2 e to the power of minus beta E2, जो कि एग्जैक्टली सेम है तुम्हारा N, ये है एवरेज एनर्जी ऑफ N नंबर ऑफ पार्टिकल्स, that is also equals to N into average energy of a single particle, क्योंकि तुम लोगों ने statistical mechanics में देखा है, this is the average energy of a single particle। Again I can tell you that is actually equals to the probability P1 into E1 plus P2 into E2, ठीक है, that is also equal to the probability P1 into E1 plus P2 into E2, N into P1 into E1 प्लस P2 into E2। तो P1 E1 प्लस P2 E2 क्या देता है तुम्हारा? एक सिंगल पार्टिकल का एवरेज एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई N, तो ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। सो आई थिंक दिस वाज हेल्पफुल, एंड ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स के जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोग आगे भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेके आप लोगों के पास आएंगे। एंड इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और डेफिनेटली आप लोग का जिनका भी रिजल्ट अच्छा हुआ है, जिसका भी रिजल्ट आया है, हम लोगों से बताइए, हम लोगों के साथ अपना सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए।
एंड डेफिनेटली ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, क्योंकि अब अगर जीआरएफ क्रैक हो चुका है तो लाइफ और ज़्यादा टफ बनने वाली है। कैसे? क्योंकि अभी फिलहाल आप लोग को इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे आईआईटी है जहाँ पे आप अपने जीआरएफ या एलएस के रिजल्ट की वजह से आप वहाँ पे पीएचडी के इंटरव्यू देने जा सकते हैं। पीएचडी के इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाइड हो जाओगे। तो कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन लेना है, प्रिपरेशन करना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना ज़्यादा सेफ रहेगा, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं यूजुअली टीआईएफआर में या आईआईएससी बैंगलोर में, आईआईटी दिल्ली में, तो वो सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने एक पीएचडी मेंटरशिप प्रोग्राम रखा है। तो डेफिनेटली जो भी बच्चे बूस्टर कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको ये मेंटरशिप प्रोग्राम फ्री में मिल जाएगा, आप लोगों को पता ही है। बट जो बच्चे ऐसे इंटरव्यू में ज्वाइन करना चाहते हैं एंड दे नीड दैट मेंटरशिप प्रोग्राम, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद मोर सच कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।